फोन है किसी के पास? नहीं है क्या? यहाँ क्यों लिख दीजिए? क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी होगी साउंड में ना। काउंटर करंट मैकेनिज्म of urine concentration. Today's topic is counter current mechanism of urine concentration. As we know, there are two types of nephrons in the kidney. One type is the cortical nephron and the other type is the juxtamedullary nephron. Cortical nephron helps in the urine formation and the juxtamedullary nephrons they help in the urine concentration. Juxtamedullary nephrons they are having a long loop of Henle that is penetrated deep into the medulla region. जितना लंबा loop of Henle होता है उतना urine ज़्यादा concentrated होता है. तो जो counter current mechanism है, it is divisible into two parts. First is counter current multiplier mechanism. And second is counter current exchanger. What is the difference between these two types? Counter current multiplier mechanism, it establishes the medullary gradient, and the counter current exchanger system, it doesn't establish but it maintains the medullary gradient that is established by the counter current multiplier system. काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप करता है मेडुला रीजन के अंदर, इसलिए मैं इसको मेडुलरी ग्रेडियंट कह रही हूँ. जो मोस्टली ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट होता है इट इज अलोंग द होल लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले. ठीक है, जो उसके ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ पे तो बड़ा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बड़ा माइल्ड होता है, बड़े मॉडरेट अमाउंट में रहता है. लेकिन जो द होल लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले के दोनों साइड जो है देयर इज मेजर डिफरेंसेस. मेजर जो है concentration gradient is established by the multiplier system, and that medullary gradient is always maintained by the exchanger system. समझ में आई? तो multiplier system occurs between the ascending and descending loop of Henle, and exchanger system occurs in the vasa recta, the two loops of vasa recta. Vasa recta is the blood capillaries that are present in the juxtamedullary nephrons. Starts from the efferent arteriole. The peritubal capillaries that are present in the cortical nephrons start from the efferent arteriole and the vasa recta. These are the blood capillaries start from the efferent arteriole of the juxtamedullary nephrons. समझ में आ गया? तो first we study about the counter current multiplier system, which is having the additive effect. Write down the definition of this counter current multiplier system. Though the flow of filtrate in the ascending and descending limbs of loop of Henle is in the opposite direction, that is counter current flow. Again I will repeat, the flow of filtrate in the ascending and descending limbs of loop of Henle is in opposite direction, that is counter current flow. The concentration difference along the loop is additive.
the concentration difference along the length of the loop is additive. That is, there is multiplication effect. अरे ये तो हाँ ठीक है. That is, there is multiplication effect. Therefore, it is called counter current multiplier system. That is why it is called counter current multiplier. Due to the additive effect, it is called counter current multiplier system. This is our loop of Henle. This is the cortex, renal cortex, and this is the medulla. Medulla of the nephron, just a medullary nephron. This whole part. What happens? This is the descending limb. And this is the, यहाँ का थोड़ा सा पार्ट जो है इसका तुमने थोड़ा चौड़ा बनाना है. This whole part is the ascending limb. यहाँ कोलेप्टिंग बनना है. The wall of this descending limb of loop of Henle, it is quite permeable to water, but it is impermeable to sodium chloride. It is permeable to water, but it is impermeable to sodium chloride. The wall of this ascending limb, it is reverse. It is impermeable to water, but it is permeable to sodium and chloride. Okay? So, multiplier system का first part है, there is constant pumping of sodium ions from this ascending limb by active transport. During first pump, write down ऐसे लिख लो, during first pump. Sodium chloride exit from this. Sodium comes out by active transport and chloride जो है it passively removes from only to maintain the electrical neutrality. इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ही क्लोराइड जो है पैसिवली इसमें से एग्जिट करता है. समझ में आएगा? इसमें जो फ्लूइड एंटर करता है या पीसीटी में जो एंटर कर रहा है, इट इज आइसोटोनिक. इट इज हैविंग ए concentration of 300 milliosmol per liter. Isotonic to the blood. Interstitial fluidity भी 300 होगी और जो यूरिन यहाँ से एग्जिट करेगा दिस आल्सो मिलेगा 300 मिलियोस्मोल कंसंट्रेशन. और में आइसोटोनिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हमेशा आइसोटोनिक होता है. That comes from the ultrafiltration of the Bowman's capsule that comes in the PCT. PCT में जो glomerular filtrate है, it is quite isotonic. Isotonic to what? Interstitial fluid and to the blood plasma. So as it is now it is moved down along the length of the loop of Henle in the descending limb. Now it is यहाँ पे तो इसकी 300 थी मिलियोस्मोल concentration. अब देखो along the length of the loop of Henle along the descending limb, its concentration goes on increasing. Okay, how?
इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जैसे जहाँ पे सोडियम की पंपिंग हो रही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, वाटर कम्स आउट बाय ऑस्मोसिस, water leaves this limb, leaves this nerve node by osmosis. As a result, concentration जो है इसकी हो जाएगी 400। ठीक है, अब दूसरा डायग्राम को बनाओगे इसमें। पहला डायग्राम बनाओगे, एक बार पूरे को डायग्राम बना कर दिखाती हूँ, तो उसे इलैबोरेट कर लेना। The first diagram you will show in the multi-track system, that is 300 यहाँ दिखाना है, 300 300 300 300 300। This is the diagram A. The whole left node is isotonic. There is no medullary gradient, no concentration gradient is there. This is the first diagram. जैसी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई तो ये प्रोसेस, ये ग्रेडियंट था। अभी सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई है। This is the first diagram. The glomerular filtrate is isotonic. Interstitial fluid जो है ये 300 300 300 IF. The glomerular filtrate which enters this having the glomerular filtrate which comes out the collectant tube, that is also 300 milliosmol concentration. समझ में आ रहा है? हाँ, as soon as the process starts, जैसे ही मल्टीप्लायर सिस्टम की ये काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर सिस्टम का पहला सोडियम पंप होता है। अभी यहाँ पे कोई सोडियम पंप नहीं हुआ है। अब जब पहला सोडियम पंप होता है तो क्या होता है देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट पंप ये पार्ट सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड की हो जाएगी 200 200 200, यहाँ कितनी हो जाएगी 400 400 400, और यहाँ कितनी हो जाएगी 400 400 400। इसको आप ए कर लो, इसको आप बी कर लो। मेडुलरी ग्रेडियंट जो है ड्यू टू पंपिंग ऑफ सोडियम, इट इज ऑलवेज मैक्सिमम से मैक्सिमम जो होता है इट इज 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ द फिल्टर। ये मेडुलरी ग्रेडियंट सेटअप हो गया, that is different in concentration inside and outside the ascending cell membrane होता है ascending one, that is the medullary gradient. maximum जो होता है it is 200 milliosmol per liter. understand how it comes? यहाँ कितना जैसे पहले यहाँ 300 था ना, 100 milliosmol यहाँ मूव कर गया सोडियम क्लोराइड, तो 300 में से 100 गया 200, यहाँ कितना था 300 300 प्लस 100 400, यहाँ भी 400 यहाँ भी 400, यहाँ कितना था 300 300 था ना यहाँ पहले 300 थे, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया देयर इज अ कंटिन्यूअस डिफ्यूजन ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, वाटर यहाँ से मूव आउट हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन जो है बढ़ गई, तो 300 से कितना हो गया 400। ठीक है, तो दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दिस इज द nephric filtrate, concentration of the nephric filtrate in the descending limb. This is the concentration of the nephric filtrate in the ascending limb. अब यहाँ कितना था हमने ये देखना है कि deep in the medulla what is the medullary gradient, अब 400 आ गया। ठीक है, in the first diagram you will show कि there is the medullary gradient जो है मैक्सिमम तो होता है 200, इसमें और इसमें डिफरेंस होता है 200 का,
लेकिन ये जो सेटअप हुआ है यहाँ पे ये था 400 milliosmol. It is the medullary gradient which is set up deep in the renal medulla. अब next this is during the इसका तो थर्ड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. अब जिसका थर्ड स्टेप में आप देखोगे अब ये वाला जो 400 यहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ जो है 300 पीछे से और ग्लोबुलर फिल्ट्रेट आ रहा है. क्योंकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस तो चल रही है ऊपर से, नया फिल्ट्रेट आ गया विच इज हैविंग द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन 300 milliosmol. This 400 due to the spectrum. New globular filtration derived. Okay, this is the C part. ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड सोडियम पंप, फिर सोडियम पंपिंग शुरू हो गई. अगेन सोडियम क्लोराइड comes here. यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? अब यहाँ की सारी कितनी हो जाएंगे? 500, 500. अब मेडुलरी ग्रेडियंट कितना हो गया? 500 milliosmol. This is the second sodium pump. Understand? 500. फिर अगेन the process is repeated. 300 दोबारा आएगा. अल्टीमेटली यहाँ पे फिर ये 500 यहाँ चला जाएगा. यहाँ कितना हो जाएगा? 700. During third pump, यहाँ कितना हो जाएगा? 700. फिर 700 यहाँ आ जाएगा. यहाँ कितना हो जाएगा? 900. ठीक है, फिर जो है 900 यहाँ आ जाएगा. Maximum medullary gradient that will set up is 1200 milliosmol per liter of the nephric filtrate. 1200 milliosmol of the nephric per liter of the nephric filtrate. 3 स्टेप है. पहले स्टेप में तो तुमने दिखा दिया कि आइसोटोनिक है. This is the first sodium pump which maintains the medullary gradient 400. Then 300 वाला again there will come new globular filtrate that will change the medullary gradient to 500. Then 700, 900, 1200. All these steps you can show. This is additive effect. Multiplier system तभी इसको कहते हैं. मल्टीप्लाई हो रहा है. 400 से 500, फिर 700, 900, 1200. So it is known as the counter current. काउंटर करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए काउंटर करंट कहते हैं. मल्टीप्लायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेडुलरी ग्रेडियंट जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है, जो इसकी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो है इट शोइंग द मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट. We have to maintain the high interstitial concentration. Interstitial fluid की concentration we have to maintain the high. Why? well counter current का मतलब क्या है? We have to remove the concentrated urine.
अब यहाँ पे कितनी थी 1200 तक आ गई है, देखिए 1200 होता है यहाँ पर, और यहाँ पे तो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है बिकॉज द कांस्टेंट रिमूवल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अल्टीमेटली जब ये फिल्ट्रेट डीसीटी में पहुंचता है, what is its concentration? It reduced to only 100 milliosmol per liter. 100 मिलीओस्मोल रह जाती है, यहाँ तो बहुत ही आ रही है ना, इधर तो देखे नहीं थी पहले 300 थी, 200 हुई, फिर और कम होएगी। हर सोडियम कॉपर बेस की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, हाइपरटोनिक हो रहा था, मैक्सिमम बढ़ गई 1200 तक। उसके बाद जब ये एसिडिक यूरिन में एंटर किया, हाइपरटोनिक यूरिन जो एंटर किया, अब हम उसको यूरिन कह सकते हैं। हाइपरटोनिक यूरिन यहाँ एंटर किया, यहाँ पे फिर ये हाइपोटोनिक हो गया क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड रिमूव हो रहा है। अल्टीमेटली 3-4 बार सोडियम क्लोराइड रिमूव होने के बाद जब ये यूरिन जो है डीसीटी में पहुंचा तो इसकी कंसंट्रेशन तो बहुत कम रह चुकी थी, बिकम हाइपोटोनिक, 100 मिलीओस्मोल रह गई थी इसकी सिर्फ यहाँ पर। अब ये एंटर करेगा कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोर्टिकल पार्ट और एक होता है मेडुलरी पार्ट। This is the cortical part of collecting head, this is the medullary part of collecting trunk. Maximum जो water की reabsorption होती है that occurs in the wall of the capillary tube, both in the cortical region as well as in the medullary region. अब यहाँ एंटर करेगा, यहाँ वाटर की reabsorption होगी, तो ये इसकी 100 थी, अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 300 मिलीओस्मोल, 300 मिलीओस्मोल पर liter of the urine because of the constant reabsorption of water from there. Now it enters the deep in the medullary region. यहाँ तक तो कॉर्टेक्स पार्ट था, अब ये मेडुला में एंटर करेगा तो इसकी जो कलेक्टिंग डक्ट की जो पोर होती है, इट इज हाईली परमिएबल फॉर वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन दैट इज नोन एज एंटीडायरेटिक हार्मोन एडीएच। एडीएच की प्रेजेंस में इसकी जो परमिएबिलिटी होती है 20 गुना बढ़ जाती है, जितनी परमिबिलिटी ज्यादा होगी उतना वाटर ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वाटर रीअब्सॉर्प्शन गोज ऑन, कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, 300 यहाँ थी, फिर 400, 600, 800, 1000, अल्टीमेटली इट बिकम्स 1200 मिलीओस्मोल। द यूरिन व्हिच कम्स आउट it is having the osmolarity 1200 milliosmol per liter of the fluid due to the continuous reabsorption of water from the capillary wall of the capillary tube under the influence of the hormone ADH। अगर ADH नहीं होगा तो बहुत कम जो है वाटर की रिमूवल होती है यहाँ पर, वाटर की। तो वाटर और सोडियम की सर्कुलेशन है नहीं, और वाटर भी तभी यहाँ से रीअब्सॉर्ब होगा अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तभी वाटर यहाँ से रीअब्सॉर्ब होगा कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, अदरवाइज नहीं होगा। समझ आई बात है? सोडियम क्लोराइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन, इफ देयर इज great amount of sodium chloride in the interstitial fluid, only then and then water will be removed from the collecting duct. And also जो water का removal है depends upon the osmolarity of the plasma, blood plasma. If there is less osmolarity of the blood plasma, then less amount of water will be reabsorbed. यहाँ से कम पानी निकले reabsorb और dilute urine will be produced। लेकिन हमारा पास ब्लड है, ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है वाजा रेक्टा के अंदर, उसमें हमने चेक करनी है कि जो ब्लड वाजा रेक्टा में फ्लो कर रहा है उसकी ओस्मोलैरिटी क्या है, उसकी जो कंसंट्रेशन क्या है। अगर पहले से उसकी कंसंट्रेशन कम है तो हमें तो ज़्यादा पानी चाहिए ना, उसको वॉल्यूम हमें बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी तो हमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, ठीक है। वाटर ज़्यादा चाहिए होगा तो यहाँ से वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्सॉर्ब होगा और ये सीधा चला जाएगा ब्लड में, तो ब्लड की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी ना, सॉरी ब्लड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो हमें पहले ही कंसंट्रेशन कम है और तो हमें कम नहीं करनी है ना उसकी कंसंट्रेशन, हमें तो उसकी कंसंट्रेशन एक लेवल तक लानी है। तो इसका मतलब क्या है, हमें कम से कम यहाँ से वाटर जो है रीअब्सॉर्ब कराना पड़ेगा। जितना कम वाटर रीअब्सॉर्ब होगा कम वाटर ब्लड के अंदर एंटर करेगा और डाइल्यूट यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड वाइस वर्सा। अगर हमारी ओस्मोलैरिटी ज़्यादा है
ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो वी वांट मोर वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से कितना यूरिन कंसंट्रेट प्रोड्यूस करना है हमने, ये हमारी बॉडी की फीडबैक मैकेनिज्म पे हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है। हाइपोथैलेमस इज हैविंग द ऑस्मोरिसेप्टर्स which judge the osmolarity of the blood and it commands to the pituitary gland and that will secrete the antidiuretic hormone, antidiuretic। तो ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम हो गया, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मेडुलरी ग्रेडियंट देयर इज द रीसाइक्लिंग ऑफ यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड। अब यूरिया जो है मैक्सिमम यूरिया विल बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द कलेक्टिंग, यहाँ बाहर आता है यूरिया, ठीक है, यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है तो यूरिया की रिसाइक्लिंग होती है और सोडियम की यहाँ पे साइक्लिंग होती है, दैट विल मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जितनी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना हमारा ये जो प्रोसेस ऑफ जो है एक्सचेंज सिस्टम है वो फास्ट होगा, ठीक है। लिख लो, कुछ लिखना चाहते हो? हाँ, एक बात लिखो, ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती है क्या हैविंग द यूरिया पंप्स, collecting ducts are having urea pumps that actively pumps urea in the interstitial fluid, that actively pumps urea into the interstitial fluid. Sodium and urea maintains the sodium and urea maintain the hyperosmotic environment around the nephron. Hyperosmotic environment, hyperosmotic environment around the nephron. A gradient is produced across the kidney. A gradient is produced across the kidney with the cortex isotonic, ब्रैकेट में 300 milliosmol per liter and the medulla very hypertonic, that is 1200 milliosmol per liter. A gradient is produced across the kidney with the cortex isotonic, ब्रैकेट में कर लो 300 milliosmol and the medulla very hypertonic, ब्रैकेट में कर लो 1200 milliosmol per liter. मेडुलरी ग्रेडियंट जो है दैट इज मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है 1200 milliosmol. दैट मेडुलरी ग्रेडियंट इज रिस्पांसिबल फॉर द काउंटर करंट मैकेनिज्म. जितना ज्यादा मेडुलरी ग्रेडियंट होगा उतना ही काउंटर करंट मैकेनिज्म की प्रोसेस तेज होगी. यूरिन कंसंट्रेशन यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, we have produced the concentrated urine, hypertonic urine because it is necessary for the land animals to conserve water. So hypertonic urine is produced. So counter current mechanism की significance है, it is necessary for the terrestrial animals because they have to conserve water and they have to produce concentrated urine. दूसरा सिस्टम है काउंटर करंट एक्सचेंजर सिस्टम. Exchanger system cannot establish the medullary gradient. It cannot establish the medullary gradient, but it maintains the medullary gradient which is set up by the multiplier system. It itself cannot establish the medullary gradient. Medullary gradient, what is the meaning of medullary gradient? In the medulla of the nephron, what is the concentration difference inside and outside of the both the limbs? This is the medullary gradient. बार बार पूछोगे medullary gradient क्या है? Concentration difference. अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो एक सोडियम पंप था, सोडियम पंप उसने तो सिर्फ 200 मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसकी वजह से जो 200 मिलीओस्मोल की कंसंट्रेशन चेंज होती थी, 200 की होती थी हर बार जो है 200 की हुई है, लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन तो कितनी ज्यादा बढ़ गई.
ठीक है ना, 1200 से ऊपर चली जाती है, 1200 चली जाती है. दिस इज ड्यू टू द structure of the anatomical structure of the nephron, that is having the ascending limb, descending limb, very close proximity to the vasa recta. हाँ, अब मैं क्वेश्चन ये रह जाता है व्हाट इज एक्सचेंजर सिस्टम, दैट इज बाय वासा रेक्टा. अब देखो वासा रेक्टा के दो लिम्स होते हैं. ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, ये इसका असेंडिंग लिम्ब है. इट्स असेंडिंग लिम्ब इज ट्वाइस क्लोज टू द डिसेंडिंग लिम्ब. अपोजिट है, ये इज ऐसे. वाटर जो यहाँ से रिमूव होता था वासा रेक्टा में, इसका मतलब ये था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये वाटर इसके अंदर आता रहता है साथ के साथ इनटू द असेंडिंग लिम्ब. और सोडियम क्लोराइड जो है एग्जिट होता रहता है. ये कॉर्टेक्स एंड दिस इज द मेडुला. तो ब्लड जो कॉर्टेक्स से मेडुला में जा रहा है इट बिकम्स हाइपरटोनिक. जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रिएट हाइपरटोनिक हो रहा था, ऐसे ब्लड भी हाइपरटोनिक हो रहा है. देखो यही तो सेटअप कर रहा है वो. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सचेंजर सिस्टम. द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट व्हिच इज सेट अप बाय द मल्टीप्लायर सिस्टम, इट इज मेंटेन्ड बाय द एक्सचेंजर सिस्टम. यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंटिन्यूअस एंट्री ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ द वाटर. यहाँ पे अपोजिट है इसकी, कंटिन्यूअस एंट्री ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ द सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पे जो ब्लड जो है बिकम्स मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड, और यहाँ ब्लड बिकम्स लेस एंड लेस कंसंट्रेटेड. हाइपोटोनिक ब्लड एंड हाइपोटोनिक ब्लड इज इन बोथ द लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा. Vasa recta is a U-shaped tube in contrast to the peridural capillaries which are having a network of branches system. Peridural capillaries का network होता है, branch and rebranch system है. लेकिन जो vasa recta is having a U-shaped tube just like the loop of Henle, ascending limb and descending limb. ठीक है, okay. Close this.